Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir and I am the Director of Operations at Parsa Eco Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all to yet another Echo session in series of Hepatitis Echo. It's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology. Today's session is case-based discussion with experts, and our expert for tonight is Professor Altaf Alam. Before I introduce our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project Echo based in USA with an objective to disseminate knowledge and best practices. We do protect patient privacy, so none of the information used in this session will identify any patient or individual. For maintaining discipline, you all are muted, but we do encourage participation, so you can unmute yourself for questions and use the raised hand option or chat box. By participating, you have given the consent for recording, and the recorded session will be available on our YouTube channel. Link will be shared by Haris in the chat box. For CME credits, please contact Uzair, our coordinator. His number is mentioned on the banner. CME credits are affiliated with Jinnah Sindh Medical University. For convenience of the spokes, the session is bilingual. Please speak in Urdu or English, whatever language you are comfortable in. Our expert for tonight's session is Professor retired Altaf Alam. He is a former professor and head of gastroenterology, hepatology department at Sheikh Zayed Postgraduate Medical Institute, Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan Medical and Dental College, Lahore, Pakistan. He is trained gastroenterologist with more than 20 years of experience in his specialty and is author of more than 50 publications. He is serving as course director at Parsa Eco Pakistan since the beginning. He is responsible for developing curriculum, observing quality of content, and evaluating speakers and feedback evaluation. We have two cases today, and Dr. Kainat will be presenting these cases. So I will hand over to Dr. Kainat. Dr. Kainat. Assalamu alaikum. Thank you. Thank you, Kainat. I'm sorry. I think I will go through the first case. I just take over from here. Uzair, can you share the first case? ये जो पहला केस है ये हमने कुछ अर्सा पहले डिस्कस किया था और then Uzair the other one, not this one. तो इसमें then we just lost track of the patient. Now जिस तरह पाकिस्तान में होता है कि a patient now has come back again. So because Altaf Saab was here, so I just thought कि it's a wonderful opportunity कि हम उनसे इस complicated scenario को discuss कर सकें. So as you can see the slide, this patient is around 60 or in May 2020 he was diagnosed multiple myeloma, renal failure, and chemotherapy was given, and he was on hemodialysis twice a week. June 2020 he had a fracture for right neck of femur, and February 2021 he had acute hepatitis with hepatitis B and C both positive. In March 2021, tenofovir alafenamide was started. I'll just go through the labs in a moment. So TAF was given after each hemodialysis, and in July he was started also on a course of sofosbuvir and velpatasvir for 3 months, and then we lost him to follow up. So about 7 or 10 days back or 2 weeks back, he came back to the OPD. Examination, but there was nothing significant. If you can see the results, in July 2020, there's slight elevation or impairment of liver function test, alkaline phosphatase, gamma GT high, but hepatitis B and C screening is negative. In February 2021, hepatitis B and C are positive, and creatinine is 5.3, bilirubin was 4.8,
ALT 676, AST around 1000, alpha 670, gamma GT around 1400. So he had E antigen positive, anti-HBe antigen negative, delta virus negative, HIV negative, HAV-IgM was negative, HEV-IgM was negative because he had acute hepatitis. And you can see very high viral loads of hepatitis B and C. So tenofovir was started, and as the jaundice settled, and based on his hepatitis C RNA, we also started sofosbuvir and velpatasvir in the usual dose. He was on hemodialysis, and then we lost him. He did not come to follow up. We tried to track the patient. So July, August, and September, he completed 12 weeks of hepatitis C. We do not have any record of on-treatment test, whether or not he had any on-treatment response. And in January, when he came about 2 weeks back, as you can see, his liver function test, ALT is 87, AST is 45, alk-phos 417, gamma GT 614, albumin 3.6. As per his oncologist, multiple myeloma is under control and they have stopped the chemotherapy. Now, hepatitis C RNA is around 56,000. It's still positive. And hepatitis B virus DNA is 902. So he's still on tenofovir alafenamide, which he continues to take, and hepatitis C is positive. So ultrasound, liver architecture is normal. There is no space occupying lesion in liver, no splenomegaly. He has bilateral chronic renal parenchymal changes, no ascites or pleural effusion. Now the question is how to go about this patient. Do we need any other test? So Uzair, if you can just leave the test on, and I will go to Professor Altaf Saab to see what he has to say about this case. Ji, sir. Thank you very much, Asad. Rather complicated case and made much more difficult by disappearing after the course of directly acting antiviral drugs. So here we have a gentleman who has multiple myeloma, has finished chemotherapy, has a stable disease, hepatitis B and C, acute hepatitis probably acquired on dialysis. Why do they get it on dialysis? It is because of bad practices in the dialysis room, not because of the machine. So the concept of negative and positive machine is, only seen in Pakistan. So what are these bad practices? Contamination of blood from one patient to the other by the personnel or the equipment being used in the dialysis room. So that's why they get it, and that's why it is so common in Pakistan, because we do not take precautions. और इस पेशेंट को भी हुआ और एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ यहाँ पर February 2021 में, as you can see, bilirubin was high, went even higher in September. Bilirubin was 4.8 and then it normalized. And as you can see, ALT and AST showed significant rise. So no doubt he had acute hepatitis B and C at that stage. कंफर्म कैसे करते? अगर anti-HBc IgM हमने उस वक्त किया होता तो it would have solved the problem. But in all likelihood, पहले negative, फिर positive, ये liver enzymes or liver profile is strongly suggestive of acute hepatitis due to B and C. Dialysis पर patient चला गया और इसको टेनोफोविर एलाफिनामाइड शुरू की गई. टेनोफोविर एलाफिनामाइड के बारे में मैं आपको बता दूं कि दिस इज
new development in the availability of drugs for hepatitis B. इसका एडवांटेज क्या है, ये नेफ्रोटॉक्सिक और जो बोन टॉक्सिसिटी है वो इसमें नहीं है. उसकी वजह ये है कि इसका एक्टिव जो मेटाबोलाइट है वो सीरम में रिलीज नहीं होता, इसलिए किडनीज और बोन्स का एक्सपोजर ही नहीं होता. इसका एक्टिव मेटाबोलाइट इज released in the hepatocytes. So concentration is within the liver and almost negligible exposure of bones and kidneys to the active drug, which is unlike tenofovir disoproxil fumarate, जहां पर प्लाज्मा में रिलीज होता है एक्टिव मेटाबोलाइट और लिवर, किडनी और बोन्स तीनों एक्सपोज होते हैं और सारे ऑर्गन्स एक्सपोज होते हैं टू द एक्टिव मेटाबोलाइट. सो ये डिफरेंस है और इसीलिए इसकी बोन और नेफ्रोटॉक्सिसिटी कम है. इसकी इंडिकेशंस क्या हैं? अभी अप्रूव्ड इंडिकेशंस तो ये कि एज मोर देन 65, हमारे मुल्क में 60 भी हम कंसिडर कर लेते हैं, और बोन या किडनी डिजीज कोई भी हो. सो इस पेशेंट में और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? वन, ये डिकम्पनसेटेड सिरोसिस में यूज नहीं कर सकते आप, इसका कोई डेटा नहीं है. नंबर टू, इसका कोई डेटा नहीं है कि जब EGFR लेस देन 15 हो और पेशेंट हीमोडायलिसिस पर ना गया हो. सो अ प्रॉब्लम. इसका डेटा हीमोडायलिसिस में है और अगर EGFR कम है बट मोर देन 15 हो, तो जब पेशेंट डायलिसिस पर हो तो इसको यूज किया जा सकता है और बाकी दवाइयों को भी यूज किया जा सकता है एडजस्टेड डोज में, और इसका डोज भी एडजस्टेड है इन हीमोडायलिसिस आफ्टर ईच सेशन ऑफ डायलिसिस. ये फर्क है, आफ्टर ईच सेशन ऑफ डायलिसिस इसका डोज देंगे, जबकि टेनोफोविर और टेनोफोविर डाइसोप्रोक्सिल और एंटिकाविर आपने सिर्फ वंस अ वीक देनी है आफ्टर डायलिसिस. उसकी वजह यह है कि वो बिल्कुल ही डायलिसिस से लिमिटेड उसकी एक्सट्रैक्शन है, जबकि इसकी कुछ एक्सट्रैक्शन होती है ड्यूरिंग डायलिसिस. So we have a patient who was rightly put on tenofovir alafenamide और आपके पास रिस्पॉन्स भी आया 27 मिलियन से कम होके 902, और आपका एम यही है वायरस को सुप्रेस रखना लेस देन 2000. सो वो आपको मिल रहा है इस केस में. प्रॉब्लम यहां पर यह हुआ कि हेपेटाइटिस सी आपने ट्रीट किया यहां सितंबर में, 3 महीने का इलाज दिया, उसके बाद पेशेंट आपके पास आया ही नहीं, और जब वो 2022 में आपके पास आया है तो CRNA पॉजिटिव है. सो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसमें कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत है. वेल, क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशंस हैं. अल्ट्रासाउंड नॉर्मल है, एप्री लेस देन 1 है और सारे नंबर्स ठीक हैं apart from renal dysfunction and as expected slightly raised ALT and AST, वो भी reversal नहीं है. platelet count is good. So we have a patient who needs treatment for hepatitis C. Question ये arise होता है, patient 60 साल का, multiple myeloma है, hepatitis B है, उसकी ट्रीटमेंट पर है, डायलिसिस पर है, एंड स्टेज रीनल डिजीज है और हेपेटाइटिस सी भी है. इन पेशेंट्स को क्यों ट्रीट करना है? कोई फायदा है? द आंसर इज यस. जो रीनल इम्पेयरमेंट या रीनल फेलियर के पेशेंट, इवन दोज हु आर ऑन हीमोडायलिसिस, डेवलप एंड स्टेज लिवर डिजीज वेरी वेरी क्विकली. Remember, these are immunosuppressed people because of kidney disease. लिवर तो इसका नॉर्मल है, तो ये इनकी जो एंड स्टेज लिवर डिजीज है वो बहुत जल्दी आ जाती है. और नंबर 2, हमारा एम है कि हमने हर एक को ट्रीट करना है ताकि हम इस बीमारी को इरेडिकेट कर सके, जो हमारा WHO के गोल्स हैं बाय 2030. सो वी हैव टू ट्रीट एवरीवन, not
ओनली बिकॉज करना इस बीमारी को हमने खत्म करना है, बल्कि उस इंडिविजुअल के लिए अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो उसकी लिवर डिजीज प्रोग्रेस होगी। तो टेस्ट तो मेरे हिसाब से तो काफी एडिक्वेट है। अगर आप बहुत ज्यादा करना चाहते हैं तो फाइब्रो स्कैन करके देख लें, जो कि सर्टनली F3 F4 नहीं आएगा, लेकिन इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा रोल इसमें नहीं है कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशंस का। सो मैनेजमेंट क्या है? पहली बात तो यह है कि हम फौरन दवाई पे जाते हैं। बी की दवाई मिल रही है, सी की दवाई देनी है, लेकिन उससे पहले पेशेंट के साथ बैठ के उससे बात करें कि आपको मल्टीपल माइलोमा है, आपकी किडनी खराब है और आप डायलिसिस पर हैं, मे बी यू गेट अ रीनल ट्रांसप्लांट इन फ्यूचर। वो हमें डेटा नहीं दिया गया, इसलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे। अगर नहीं भी जाता है वो रीनल ट्रांसप्लांट पे और डायलिसिस पर रहता है, तो हेपेटाइटिस बी है जो एडिक्वेटली सुप्रेस्ड है, जो हमारा एम होता है, लेकिन हेपेटाइटिस सी मौजूद है। आप उसे बताएंगे कि आपका लिवर अभी नॉर्मल है, इसलिए अगर हम ये दो आगे बुझा के रखें तो जलने का चांस कम हो जाएगा। खत्म तो नहीं होता, लेकिन बहुत कम हो जाएगा। सो ये आप उसे बताएंगे कि लिवर आपका नॉर्मल है। फिर आप उसे बताएंगे कि हेपेटाइटिस सी भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, करना क्या चाहिए। मैं क्या करता हूं, मैं उनको कहता हूं कि जी आप अपनी जाती इस्तेमाल की तमाम चीजें जिस पर खून लग जाता है वो अलग रखें, मसलन तौलिया, टूथब्रश, रेजर, कंघी, नेल कटर, हेयर ब्रश। खून निकले उसको कोई दूसरा आदमी हाथ ना लगाए, कोई जख्म हो उसको कवर करके रखें। साथ रहने, साथ खाने, साथ सोने, साथ पीने से कुछ नहीं होता अगर पूरी फैमिली हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेटेड है। अब हम आते हैं वैक्सीनेशन पर। पेशेंट को कोविड की वैक्सीन, फ्लू की वैक्सीन, निमोनिया की वैक्सीन, हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन देनी है। हम एक ही नहीं देते। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो एंटी-एचआईवी आईजीजी चेक कर लें, और अगर वो नेगेटिव है तो उसकी भी वैक्सीन दे सकते हैं। फिर आपने पेशेंट को बताना है कि कोई अल्कोहल, स्मोकिंग, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स ये ना ले, और घर वाले तमाम लोग हेपेटाइटिस बी चेक कराएं। और जो लोग नेगेटिव हैं और उन्होंने अभी तक हिफाजती टीका नहीं लगवाया हुआ है, वो हिफाजती टीके का कोर्स मुकम्मल करें। और जब तक आपके स्पाउस या पार्टनर को 3 टीकों का कोर्स नहीं लगता, मियाँ बीवी के ताल्लुकात के लिए बैरियर कंट्रासेप्शन यूज करें। सो ये आपने बैठ के पहले बात करनी है पेशेंट के साथ, और इसमें 1 से 2 मिनट से ज्यादा तो मुझे कभी भी नहीं लगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट में हम सारा कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं पेशेंट को। इससे पहले कि वो पूछे खाना क्या है, आप बताएं कि मेरी तरफ से खुराक का कोई परहेज नहीं है, अपनी नेफ्रोलॉजिस्ट की एडवाइस को फॉलो करें, क्योंकि आपका लिवर नॉर्मल है। सो ऑफ कोर्स साफ पानी, साफ खाना, ताकि कोई और इन्फेक्शंस या हेपेटाइटिस ई अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई है तो वो ना हो जाए। सो ये सारी बातें करने के बाद अब आते हैं हेपेटाइटिस सी पर। शुड बी ट्रीट? द आंसर इज यस। जैसे मैंने बताया, किससे इलाज करना है? अगर मेरे पास ये पेशेंट हो तो मेरे पास चॉइस नंबर 1 वॉसिवी होगी। सोफॉस्बाविर, वेल्पाटास्विर, वॉक्सेलाप्राविर। कितने अरसे के लिए? 3 मंथ्स। और मैं इस पेशेंट में लो डोज राइबाविरिन ऐड कर दूंगा अगर ये टॉलरेट करता है। राइबाविरिन का डोज इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये एक्सपोज्ड है, और मेरे ख्याल में हर वो पेशेंट जो कि डीएएस को एक्सपोज हो चुका हो, वो डिफिकल्ट टू ट्रीट है। और जो दवाई आप दे रहे हैं उसमें 2 दवाइयां तो वही हैं जो पहले आपने दी थी। सो प्लीज डू समथिंग डिफरेंट, डू समथिंग मोर। ही इज अ डिफिकल्ट टू ट्रीट। सो आप, मैं क्या करूंगा, मैं इसे वॉक्सेलाप्राविर दूंगा, सॉरी वॉसेवी दूंगा, जिसमें 3 ड्रग्स हैं, और उसके साथ राइबाविरिन ऐड करूंगा। याद रखें कि राइबाविरिन रीनल फेलियर या रीनल इंपेयरमेंट में डोज एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। मोर देन 50 EGFR कोई डोज एडजस्टमेंट नहीं। 30 to 50
आपने 200 मिलीग्राम ऑल्टरनेटिंग विद 400 मिलीग्राम देना है, और ये दवाई के पैकेज इंसर्ट पे लिखा हुआ है। और लेस देन 30 आपने सिर्फ 200 मिलीग्राम डेली देना है। समटाइम्स मैं 200 मिलीग्राम ऑल्टरनेट डे से शुरू करता हूँ टू सी के रिस्पॉन्स आया, कोई बैड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे, हिमोलिसिस तो नहीं हो रही, हीमोग्लोबिन फॉल तो नहीं कर रही। सो आप जो रेकमेंडेड है वो 200 मिलीग्राम डेली। दुनिया में तो राइबाविरिन लेवल्स भी चेक होती हैं और उसके मुताबिक डोज सेलेक्ट किया जा सकता है। आपके पास ये लग्जरी नहीं है, सो आप 200 मिलीग्राम डेली या 200 मिलीग्राम ऑल्टरनेट डे इस पेशेंट में जरूर दें अलोंग विद वॉसिवी। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वॉसिवी अवेलेबल नहीं है। अभी तो है, पेशेंट अगर अफोर्ड कर सकता है 1 लाख रुपए पर मंथ तो 3 महीने का इलाज 3 लाख रुपए का होगा, और ये सब्सिडाइज्ड रेट पर कंपनी प्रोवाइड कर रही है। दवाई वही है जो अमेरिका में मल्टी $1000 की मिल रही है, यहाँ पर वही 3 लाख रुपए में एक कोर्स मिल रहा है। सो दवाई वही है। अगर ये अवेलेबल नहीं है या पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो आपके पास फिर एक ही चॉइस रह जाती है पाकिस्तान में, सॉफ वेल राइबा, और अगेन मैं एम्फेसाइज करूंगा रिड्यूस डोज ऑफ राइबा फॉर 6 months। सो ये हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर आप के पास लग्जरी है, पेशेंट अफोर्ड कर सकता है, दवाई अवेलेबल है, तो आप वॉसेवी यूज करें। रीनल फेलियर में वॉसेवी का जस्ट लाइक सॉफ्टवेल कोई डोज एडजस्टमेंट नहीं है, और ये पेशेंट डीकम्पनसेटेड नहीं है, इसलिए वॉसेवी की कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है। सो मेरे ख्याल में तो इन्वेस्टिगेशंस के हिसाब से हमें कुछ नहीं चाहिए। फाइब्रो स्कैन करा लें, अगर एक ही वैक्सीन देना चाहते हैं तो एंटी एचएवी आईजीजी करा लें, नेगेटिव है उसकी भी वैक्सीन दे दें, बाकी तो सारी देनी है। और इसका इलाज शुरू करें और क्लोज फॉलो अप करें, इस वक्त इसे दौड़ने ना दें। सो कंप्लायंस, रेगुलर फॉलो अप, राइबाविरिन के साथ खास तौर पे जो लोग मेरी उम्र के हैं और उन्होंने इंटरफेरॉन यूज की हुई है, उनको बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। सो डोंट लेट दिस पेशेंट स्लिप अवे, close follow up, initial follow up in 2 weeks, and then every 2 to 4 weekly आप इसे फॉलो करें, डायलिसिस जारी रखें, टैफ जारी रखें। आई एम श्योर कि ये जरा डिफिकल्ट टू ट्रीट पेशेंट है, कोई आपके अपने व्यूज भी होंगे, so you are most welcome to share it with me. Thank you. Thank you very much for a very, very nice elaboration. Uzair, if you can stop share. मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझे जरा भागने ना देने का तरीका भी बता दें। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करें। जो डिफिकल्ट पेशेंट होते हैं उनके मैं वाइफ को, स्पाउस को, उनके बच्चों को रिस्पॉन्सिबल बनाता हूँ, और मैं कहता हूँ आई एम नॉट गोइंग टू आस्क हिम, आई एम गोइंग टू आस्क यू, and you are always going to bring him. ये नहीं होगा कि मुझे काम था, 2 हफ्ते के बाद आप ही लेकर आएंगे, और अगर नहीं लाएंगे तो तैयार हो जाइए, फ्यूचर इज वेरी बैड फॉर हिम एंड यू विल बी डीलिंग विद 2 organ damage. He will not die, he will be struggling to live, and you will all struggle with him. सो थोड़ा सा उनको बता दें, उनको जिम्मेदारी दें। पेशेंट को तो आपको पता चल गया अनरिलायबल है, सो मेक समबडी एल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग हिम बैक विद द टेस्ट दैट यू हैव आस्क्ड फॉर। जी, वी आर ओपन टू डिस्कशन। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो है, इज वन ऑफ द टफ वंस दैट आई हैव सीन। अगर कोई सवाल करना चाहते हैं ऑडियंस में से, आपके पास रेज हैंड की ऑप्शन है। और सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिस तरह आजकल कोई गवर्नमेंट सेक्टर में जिस तरह है नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स हैं, और उसमें प्राइमरीली कुछ लोगों की प्रैक्टिस देखी है कि सॉफ्ट डेक्ला रजीम विद राइबा उसको यूज किया जाता है, और उसके बाद 3 months के बाद पेशेंट रिस्पांस नहीं करता,
या 3 मंथ्स लेके पेशेंट छोड़ देता है, तो उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम रिलैप्स के साथ आता है तो उसमें फिर नॉन अफोर्डिंग है तो हमारे पास यही ऑप्शन बचती है कि उसको फिर हम 6 मंथ्स का ही करवा दें। तो इसमें सॉफ्ट डैक्ला राइबा इसको स्टार्ट में ही अगर 6 मंथ्स का कर दिया जाए तो जी, नॉन सिरोटिक पेशेंट easy to treat soft DAC 3 months without ribavirin और soft DAC के साथ difficult to treat upfront जैसे आपने कहा 6 months. I totally agree. So ribavirin अवेलेबल है आपके डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल्स में, हेपेटाइटिस क्लिनिक्स में, चैरिटी क्लिनिक्स में, हर जगह अवेलेबल है. सो उसको ऐड करना कोई इशू नहीं है. और 6 मंथ्स की थेरेपी दे दें डिफिकल्ट टू ट्रीट पेशेंट में, ताकि वो मेरे पास आए तो मैं उसे ये ना कहूँ आपने तो इलाज ही नहीं लिया पूरा, अब आप दोबारा वही इलाज 6 माह का लें. तो व्हाई नॉट जिसे कहते हैं निप द इवल इन द बड, उसी पहले दफा गो फॉर द किल. सो एनी डिफिकल्ट टू ट्रीट पेशेंट, चाहे वो प्रीवियस एक्सपोजर हुआ हो इंटरफ्रॉन का या डीएज का, या मल्टी ऑर्गन फेलियर है, या सिरोटिक है, या डीकम्पनसेटेड सिरोटिक है, upfront 6 months, agreed, no problem. So soft DAC riba 6 months in difficult to treat. Any other question? Sorry, जी बोले, go ahead. सॉरी सर, सर एक थोड़ा सा इससे सिनेरियो से थोड़ा हटके क्वेश्चन है कि एंटी-एचबीएस वैक्सीनेटेड पेशेंट्स हैं बी के, और उसमें एंटी-एचबीएस लेवल जरूरी है कि हम मॉनिटरिंग करें और उसके बाद बूस्टर दें, या हमें अगर पेशेंट नॉन अफोर्डिंग है तो विदाउट एंटी-एचबीएस लेवल भी हमें बूस्टर दे देना चाहिए 5 इयर्स के बाद, या व्हाट यू से? राइट. कुछ कैटेगरीज हैं जहां पर आपको रिक्वायर्ड है कि आप नंबर 1 सीरो कन्वर्शन चेक करें, और नंबर 2 एंटीबॉडी लेवल्स को प्रोटेक्टिव लेवल पर रखें, और रीनल फेलियर इज वन ऑफ दैम. अगर आप नहीं कर सकते, आपको वैसे ही पता है कि ये डिफिकल्ट टू, इनकी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कम होती है रीनल फेलियर में, इसलिए डोज भी डबल देते हैं, और एवरी ईयर मॉनिटरिंग की भी जरूरत होती है. और अगर लेवल कम हो गया तो गिव अ बूस्टर अगेन एंड अगेन द डबल डोज बूस्टर. सो वो जो आप नॉर्मली 1 cc देते हैं उसके बजाय 2 cc देंगे. सो आई थिंक आइडियल तो यही है कि एंटी एचबीएस लेवल इन सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पेशेंट्स में चेक किया जाए. अगर नहीं करते तो देन इट इज एनीबडीज गेस कि हम वी आर शूटिंग इन द डार्क. सो I don't know what we are trying to achieve. अगर हम 300 रुपए का टेस्ट कर लेते हैं और 1600 रुपए की वैक्सीन बचा लेते हैं, तो I think it is cost effective to do the test. So this is what my opinion would be. Thank you, sir. Any other question on this case? Okay, I think we should move on to the next one. Dr. Kainat, if you can. Yes, sir. So in the next case, we have a 62 years old male who presented with complaint of abdominal distension and constipation from past 2 weeks. He was diagnosed with HCV in 2007, for which he took antiviral treatment twice. In 2007, he took standard interferons, and in 2014, he took PEG-RIBA with sofosbuvir. There was no follow-up after 2014, and there is no other comorbidity. On examination, his abdomen is soft, ascites is positive, and chest was bilaterally clear. His investigations are HP 9.6, TLC 10.5, platelet 94, creatinine 1.65,
sodium 134, potassium 4.5, bilirubin 2.3, ALT 40, AST 65, alkaline phosphatase 222, albumin is 2.8, PTINR 24 by 2.3, AFP is 4.7, his CTP score is B9, HCV PCR quantitative is not detected, HBS surface antigen is positive, HBV DNA PCR is 2000 international units, HPE antigen is negative, and NT-HPE is positive. Ultrasound abdomen shows cirrhosis of liver with no focal lesion. PV is patent. Moderate splenomegaly and ascites is seen. The question is, what other investigations are required in this patient? What should be the management plan in this patient? And lastly, if he is a candidate for antiviral treatment for hepatitis B. Thank you. So we have this cirrhotic patient who's been treated for hepatitis C twice with interferon ribavirin and later PEG, SOF, and RIBA. Unfortunately, no follow-up. We don't know whether he was hepatitis B positive at that time or he contracted it later. And as you can see, his child score is 9, child class B. Creatinine is 1.65, which is a concern. He has ascites on ultrasound. Alpha fetoprotein is normal. E antigen negative disease, viral load is 2000 international unit for hepatitis B. No focal lesion or ultrasound. जी Dr. Altaf. जी, पहला सवाल आपका है कि व्हाट अदर इन्वेस्टिगेशंस. वेल, इसमें जैसे पिछले केस में HIV और एंटी HDV किया हुआ था, इसमें नहीं किया है. सो यू नो, Hep B surface antigen, anti-HDV, and technically HIV should always be included in the panel. So anti-HDV नहीं है, और अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो डेल्टा RNA भी चेक करना पड़ेगा, HIV चेक करना पड़ेगा. यूरिन का कोई टेस्ट नहीं है, हालांकि क्रिएटिनिन ज़्यादा है, यूरिन कंप्लीट, यूरिन सोडियम, ताकि हमें पता चले कि ये हेपेटोरीनल में तो नहीं जा रहा. डायग्नोस्टिक एसिटिक टैप, वर्जिन असाइटीज है, पहले कभी टैप नहीं हुई, हमें नहीं पता कि ये ट्यूबरकुलस है या कोई और, या इसे SBP हुआ है जिसकी वजह से वो HRS में जा रहा है. सो वी नीड टू डू डायग्नोस्टिक एसिटिक टैप. इसका EGFR हमेशा कैलकुलेट करें, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की दवाइयां जब भी आपने देनी है, जो भी देनी है, दैट इज बेस्ड ऑन EGFR. खुदा का शुक्र है कि लैब्स अब देना शुरू हो गई हैं, साथ लिखा होता है क्रिएटिनिन के, तो लेकिन अगर नहीं है तो आपके पास स्मार्टफोन सबके पास है, 1 सेकंड लगता है, आप EGFR कैलकुलेट कर सकते हैं. मैंने इसका कैलकुलेट किया है, वो 42 के करीब बनता है. जो मर्जी फार्मूला इस्तेमाल कर लें, 42 to 43 की रेंज में है. सो EGFR इज लो. सो जहां तक इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है, EGFR होना चाहिए, यूरिन का कंप्लीट और यूरिन का सोडियम चेक होना चाहिए, HIV, anti-HDV एंड डायग्नोस्टिक एसिटिक टैप इज अ मस्ट. सो मेरे ख्याल में ये इन्वेस्टिगेशंस लाजमी होनी चाहिए. यहाँ पर मैं एक और बात पॉइंट आउट कर दूं, लिमिटेशन ऑफ CTP स्कोर. यहाँ पर इन्होंने B9 बनाया हुआ है, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेच करें तो ये C11 बन जाएगा, क्योंकि एल्ब्यूमिन 2.8 है, जो 2 के स्कोर में भी आ जाती है, 3 के स्कोर में भी आ जाती है, और INR 2.3 है, जो 2 के स्कोर में भी आती है, 3 के स्कोर में भी आती है. सो ये B9 की बजाय C11 बन जाएगा. और नंबर 2, इसका मेल्ड हमेशा कैलकुलेट करें, क्योंकि हम ट्रांसप्लांट के दौर में है, पेशेंट कराए ना कराए, कम से कम आपकी तो जिम्मेदारी है कि आप बताएं कि 14 से ज़्यादा है या 18 से ज़्यादा है. अब ट्रांसप्लांट के बगैर कोई चारा नहीं है. सो यू नो, मेल्ड हमेशा कैलकुलेट करें. इसका मैंने अभी कैलकुलेट किया है, वो 25 बनता है. सो मेल्ड भी बहुत हाई है. सो ये हमें करना है इस पर्टिकुलर पेशेंट में इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस.
अगर किसी के जहन में इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट से कोई सवाल है तो वो जरूर पूछ ले। मेरे ख्याल में आपने इसे कवर कर लिया है। स्वाय इसके कि हमें एंडोस्कोपी को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि दैट्स वन थिंग, वी हैव अ जी डीकम्पेंसेटेड पेशेंट। जी, excellent. जी, sorry, I forgot about that. Yes, endoscopy should also be included. So, investigations के point of view से ये हमें चाहिए. What should be the management plan? In this case, well, आप फिर पेशेंट के साथ बैठ जाएं, 2 मिनट में सारा कुछ एक्सप्लेन करें, उसे बताएं कि आपके जिगर की शक्ल और काम दोनों खराब हो चुके हैं। गाड़ी में खराब हो जाए तो गाड़ी रुक भी जाए तो आप पुर्जा चेंज कर देते हैं। इंसान की जिंदगी में अगर गाड़ी रुक जाए तो फिर कोई रास्ता नहीं है, देन यू हैव मिस्ड द बोट। सो आपका मेल्ट 25 है, आपका चाइल्ड क्लास B9 to C11 है, you clearly need to go for liver transplant. ऑफ कोर्स बाकी चीजें साथ साथ होंगी, लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट के लिए आपने जाना है, बाकी चीजें मैं आपको बताता हूं। बाकी वही बातें हैं कि जाती इस्तेमाल की चीजें अलग रखें, फैमिली वैक्सीनेशन की बात करें, पेशेंट की वैक्सीनेशन की बात करें। जैसे मैंने बताया, कोविड, नमोनिया, फ्लू, HIV, ये और बेबी HIV, इन सब की वैक्सीन की जरूरत है। शराब, सिगरेट, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग्स, इन सब को अवॉइड करें। नमक थोड़ा कम लें, बंद ना करें, और एल्ब्यूमिन कम है, 2 अंडे की सफेदी कम से कम जरूर ले लिया करें, ज्यादा भी ले सकते हैं। सो ये उसकी जनरल आपने बैठ के बात करनी है और उसको प्रिपेयर कर लेना है कि अब तो कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय लिवर ट्रांसप्लांट के। और उसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है, इज ही अ कैंडिडेट फॉर एंटीवायरल ट्रीटमेंट फॉर हेपेटाइटिस बी? यस, एवरी सिरोटिक, वेदर कॉम्पनसेटेड और डीकम्पनसेटेड, जो कि ये है, शुड बी ट्रीटेड। उसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये अगर लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाता है, तो जब ये लिवर ट्रांसप्लांट के लिए जाएगा तो विद इन 3 to 4 months इसका वायरल लोड कम हो जाएगा। इसे हेपेटाइटिस बी इम्यून ग्लोबुलिन, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, पेरी ट्रांसप्लांट और पोस्ट ट्रांसप्लांट नहीं देनी पड़ेगी। पोस्ट ट्रांसप्लांट आउटकम इसका अच्छा होगा। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसका स्प्रेड और प्रिवेंशन एस्पेक्ट पे भी काम करेंगे। सो एंटीवायरल थेरेपी तो देनी ही है और सबको देनी है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या देना है। याद रखें, EGFR was 42। अगर EGFR लेस देन 50 हो तो एंटिकावेर और TDF यानी टेनोफोवेर डाइसोप्रोक्सिल फ्यूमेरेट दोनों का डोज रिड्यूस होगा। कितना होगा? एंटिकावेर का 0.5 मिलीग्राम ऑल्टरनेट डेज, हर दूसरे दिन, और एंटिकावेर का और TDF का 300 मिलीग्राम एवरी अदर डे। सो इसका अगर आप चूज करते हैं तो ये डोज होगा। और अगर आप टैफ यूज करते हैं, टेनोफोवेर एलाफिनामाइड, वो 15 से EGFR अगर ज्यादा है, जो कि इसका है, उसमें कोई डोज रिडक्शन या डोज एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। सो यू विल गिव टैफ। और अगर मुझसे पूछे तो आई वुड सर्टेनली चूज टैफ। ऑफ कोर्स मैंने SBP रूल आउट करना है, मैंने हेपेटोरीनल पिक करना है, और मैंने हेपेटोरीनल सिंड्रोम को ट्रीट करना है विद एल्ब्यूमिन और टर्लीप्रेसिन। इफ आई कंफर्म कि इसका को हेपेटोरीनल सिंड्रोम है या एक्यूट किडनी इंजरी है, तो आई विल डू ऑल दीज थिंग्स। सो ये इसकी ट्रीटमेंट होगी। आप एंटिकावेर भी दे सकते हैं लेकिन ऑल्टरनेट डे पर, TDF भी दे सकते हैं ऑल्टरनेट डे पर, और टैफ फुल डोज ऑन अ डेली बेसिस इसको शुरू की जा सकती है। सो मल्टीपल एडवांटेजेस। और
सिर्फ क्वेश्चन यहाँ पर ये आ जाता है कि इसका डीकम्पनसेटेड सिरोसिस है। सो जैसे मैंने पिछले बात बताया था कि टैफ की अभी डेटा मौजूद नहीं है। आई एम श्योर कि यू विल गेट द डेटा इन ड्यू कोर्स और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप इसको मद्देनजर रखें कि डीकम्पनसेटेड सिरोटिक में क्या देना है, तो गो सेफ्टी वाइज, और अगर इसने रीनल ट्रांसप्लांट लिवर ट्रांसप्लांट के लिए भी जाना है तो एंटिकावेर इज द अदर चॉइस। मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिन लोगों में लिवर ट्रांसप्लांट होता है उनको नेफ्रोटॉक्सिक बहुत सारी दवाइयां दी जाती हैं और फर्दर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स नहीं देनी चाहिए। सो I would go for, my choice would be Entecavir, TAF because it is decompensated cirrhosis, TDF because अगर फ्यूचर में इसका लिवर ट्रांसप्लांट होता है तो आई मे हैव टू स्विच या चेंज करना पड़े। उससे बेहतर है कि आप शुरू में ही अप फ्रंट इसको ऐसी दवाई दें जो जिसको चेंज ना करना पड़े। सो चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट एंटिकावेर, alternate day until the kidney function improves। अगर वो हो जाता है तो फिर आप फुल डोज पर आ जाए। देयर इज सम कंट्रोवर्सी के 0.5 मिलीग्राम एंटिकावेर देना चाहिए या 1 मिलीग्राम देना चाहिए इन सिरोटिक एंड इन डीकम्पनसेटेड सिरोटिक। जिसकी रीनल इंपेयरमेंट है उसमें तो रेकमेंडेड 0.5 ही है, ऑल्टरनेट डे या एवरी थर्ड डे या वंस अ वीक। लेकिन a case can be made कि एक compensated cirrhotic with normal kidney function में आप एंटिकावेर 1 मिलीग्राम कंसिडर कर सकते हैं, जो कि कुछ एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि शुड बी द डोज। सो दैट इज ऑल आई हैड टू से। इफ देयर आर एनी comments or questions or suggestions, please come forward. Thank you very much indeed. Uzair, if you can stop share. इसमें एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगा कि हम डेल्टा की बात करते हैं, मसलन इस सिनारियो में अगर डेल्टा एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाती है तो विल आई मीन आई नो इस पर्टिकुलर ये हमारे आजकल की डेट में हमारा क्या प्लान चेंज कर सकता है? In terms of treatment, nothing. You cannot give interferon to this particular patient. लेकिन आप ट्रांसप्लांट पे जाने के लिए आपको ये सारा डेटा होना चाहिए। यू नो कि ट्रांसप्लांट का आउटकम बेहतर होता है इन बी एंड डी को इन्फेक्शन, और ट्रीटमेंट तो आपने देनी ही है, न्यूक्स आपने देने हैं। आप डेल्टा ट्रीट करते हो या नहीं करते दैट इज इररेलेवेंट। इस पर्टिकुलर केस में बी को तो आपने सुप्रेस करना ही है फॉर मल्टीपल। मेरे ख्याल में ये इसकी अर्जेंसी ऑफ ट्रांसप्लांट पे भी होगा, क्योंकि with delta positive in this stage and especially RNA is positive, तो मेरे ख्याल में if the patient really can go for transplant तो उसको ये भी कहना पड़ेगा भाई आपके पास टाइम नहीं है। I don't know what. Yeah, transplant centers भी sometimes oddly behave करते हैं। I just sent a similar patient and he came back today to me कि इसका किडनी फंक्शन ठीक कर दें फिर हम ट्रांसप्लांट कर देंगे। So you know, a liver transplant center who can do everything, hepatorenal syndrome की treatment and everything अपनी नजर के सामने रख के, so you know it's very, या वो कह देते हैं इसका लिवर फंक्शन ऑप्टिमाइज करके भेज दें। वेल कैसे होगा? एंड स्टेज लिवर डिजीज है। द लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर शुड admit these patients, optimize them and do the transplant when they find the optimum window. ये नहीं है कि मेरे पास भेज दिया, वो 700 मील दूर मेरे पास आ गया कि अब इसका किडनी फंक्शन इंप्रूव करें, जब दोबारा जाएगा तो कहेंगे इसका लिवर ऑप्टिमाइज करें, तो फिर आपका क्या काम है? This gentleman certainly needs a liver transplant, should be admitted if he has a donor, और अगर पेइंग फैसिलिटी में जा रहा है, if he had resources. So you know ये भी एक डायलेमा है
कि किडनी फंक्शन इम्प्रूव कर दें, लिवर फंक्शन इम्प्रूव कर दें, फिर हमारे पास भेज दें। ऑफ कोर्स आई विल एडमिट दिस पेशेंट, do all that I have said, confirm HRS, rule out SBP, give him volume expansion and albumin, and if needed, terlipressin, and see where we go from there. But urgency of transplant तो है, इसका MED score 25 है, और ये these patients deteriorate rapidly, acute ACLF में जाएंगे and they will die within 7 days. So urgency है इसमें. जी, any other comment or question, please? सर एक दो क्वेश्चन है इसमें एल्ब्यूमिन रिप्लेसमेंट से मुतालिक। एक तो जो एग वाइट है उसकी ओरल बायोअवेलेबिलिटी कितनी है, और हम कितनी एग वाइट देने के बाद ये समझेंगे कि पेशेंट का एल्ब्यूमिन कितने से कितने तक चला जाएगा। दूसरा, क्या इसमें इस केस में हम एल्ब्यूमिन 1 या 1.5 ग्राम पर केजी के हिसाब से देंगे, तो वो तो डोज मतलब आई मीन वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं रहता पेशेंट्स के लिए, तो वो कितना हमें मैक्सिमम 100 ml के उसको दे देने चाहिए। और तीसरा, मैंने एक क्वेश्चन ये है कि कुछ लोगों की प्रैक्टिस देखी है, although guidelines don't recommend it, कि वो चूंकि एल्ब्यूमिन की हाफ लाइफ 21 डेज होती है, तो वो पेशेंट को जिनको हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया होता है और डिकम्पनसेशन होती है और दोबारा बार बार NSR में जा रहे होते हैं, उनको मंथली एक 100 ml एल्ब्यूमिन का शॉट लगवा देते हैं, जस्ट के 21 डेज गुजर गए हैं तो नेक्स्ट के लिए एल्ब्यूमिन अवेलेबल हो बॉडी में। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देयर इज डेटा अवेलेबल इन लिटरेचर। पहले मैं एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन की बात करूंगा, जो आपने आखिरी बात की कि एवरी 2 वीक्स, एवरी वीक या एवरी 4 वीक्स देते हैं। इसका जो डेटा था कंट्रोल ट्रायल, उसमें डेफिनेटली एडवांटेजेस थे, और इट इज कंसिडर्ड टू बी an expensive but good option in those people who cannot afford, who cannot go for liver transplant for multiple reasons. So yes, it's not without evidence, and this can be worked out. There is no data on egg whites. You know, ये पेशेंट को अगर बता दें और वो खुश हो जाए साइकोलॉजिकली के कुछ एल्ब्यूमिन की सोर्स ले रहा है, तो I think it will just make him happy. But I have not come across any data जो ये सजेस्ट करे कि 2 एग वाइट लेने से इतनी एल्ब्यूमिन बढ़ जाएगी और नहीं लेगा तो इतनी कम हो जाएगी. All you can do is tell him कि good diet, high protein diet, at least 1.5 gram per kilogram body weight in this situation, और एग वाइट्स लेता रहे और उसका एल्ब्यूमिन आप मॉनिटर करके देख लें कि कोई एडवांटेज हो रहा है, मे बी एवरी 3 months और सो, और यही आप कर सकते हैं. बट वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन के कितना बढ़ जाएगा 2 से और 4 से कितना बढ़ जाएगा. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी सच डेटा कि कितना एग वाइट कितना एल्ब्यूमिन इंक्रीज करता है. थैंक यू सर. जी, थैंक यू वेरी मच. मैं सिर्फ ये ऐड करूंगा कि अपने मरीजों का खाना पीना बंद ना करें, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. और डॉक्टर फारूक ने आपसे बड़ी दफ़ा बात की है, और वो यहाँ भी बड़ा जोर देते थे कि स्पेशली डीकम्पेंसेटेड सिरोटिक में रात को वो जरूर कुछ लेके सोए, क्योंकि वो जो गैप आता है 6 घंटे का, 7 घंटे का, तो कुछ ना कुछ स्नैक लेके, बेड टाइम स्नैक जरूर आप इनको रिकमेंड करें. और इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. और बहुत बुरी तरह मेल नरिश्ड होते हैं हमारे पेशेंट्स. आज भी मेरे पास एक पेशेंट थी, जिसका मेरे ख्याल में 36 kg वेट था. तो इट्स अ वेरी वेरी यू नो एक बहुत डिसमेल सा सिनारियो. एनी हाउ, वी आर ऑलमोस्ट डन. 2 अनाउंसमेंट्स हैं. एक तो हम लोग फैटी लिवर पे एक मच अवेटेड एको प्रोग्राम है NAFLD के ऊपर.
that is going to start. Uske once a month lecture hai. The first talk is on, I think, 21st of February by Dr. Shahid Habib from United States. वो ट्यूसन में होते हैं. He's a well-known authority on NAFLD. उसके बाद डॉक्टर बिलाल हमीद will be शाहिद जो है वो पैथोफिजियोलॉजी पे ज़्यादा बात करेंगे. Bilal Hamid from San Francisco will be talking on clinical features and diagnosis, and that will be in March. Or April में Farooq Khan will take up management of NAFLD in clinical practice. So please don't miss out. ये आप announcement आपको very soon you'll be getting that. And we are also starting a digestive disease echo, जिसका पहला program GERD के ऊपर मेरे ख्याल में 17th of February को है. That will be जो NAFLD है वो रात 10 बजे का टाइम है, और digestive disease का दोपहर 3 बजे का या 2:30 बजे का टाइम है. वो भी अभी उज़ैर will be sharing, I think in the next couple of days आपको उसकी announcement भी मिल जाएंगी. So I'm really grateful to all of you for your support for this program. और inshallah there are more programs lined up. Liver cancer का भी हम कर रहे हैं, तो आपके पास हर हफ्ते कोई ना कोई चीज होगी, provided you have time to join us in discussion and debates with the sole purpose कि हम liver disease की understanding और उसका जो knowledge है उसको बढ़ाते जाएं. So thank you very much. Kiran, over to you. We are nearly done. Thank you very much. Thank you very much, Professor Altaf Saab. Let me आपसे फिर से request है spokes से कि we do encourage cases from the spokes, or we would like that spokes will present their own cases. But if you are a bit hesitant, आप लोग हमसे request कर सकते हैं case formats की, और हम आपकी तरफ से case present कर सकते हैं. And we are grateful and thankful to Pakistan Society of Hepatology and Ferosens Laboratories Limited for unrestricted educational grant and Barsa Trust. And Allah Hafiz from my side. Uzair, you can call off the meeting. Sure, ma'am. I'm going to call off this meeting. Allah Hafiz, everybody. Allah Hafiz.